Good morning, student. Today we shall discuss the Spatial Information Technology. ये आपका लास्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल के, इसको ध्यान से आप देखेंगे. We'll start. You know that computers enhance our capabilities in data processing and in drawing the graphs, diagrams and maps. रेफर्स टू चैप्टर 4 में आपने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डाटा के लिए. The disciplines that deals with the principles of methods of data processing and mapping using a combination of computer hardware and the application software are referred as the database management system DBMS and the computer assisted cartography respectively. However, the role of the such computer applications is restricted to merely processing of the data and their graphical presentation. In other words, the data so processed or the maps and the diagrams so prepared could not be used to evolve a decision support system. As a matter of fact, there are several questions that we normally encounter in our day-to-day life and look for the satisfactory solutions. These questions may be: what is where, why is it there, what will happening if it is shifted to a new location, who will be benefited by such a relocation, who are expected to lose the benefits of the relocations takes place. In order to understand these and many other questions, we need to capture the necessary data collected from the different sources and integrate them using a computer that is supported by the geoprocessing tools. Herein lays the concept of the spatial information system. In the present chapter, we will discuss the basic principle of the spatial information technology, and it's the extension to the spatial information system which is more commonly known as the geographical information system. इसको बोलते हैं GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र. First of all, we know what is a spatial technology. The word spatial is derived from the space. It refers to the features and the phenomena distributed over a geographically definable space. यानी कोई किसी जगह की बात हम करते हैं, प्लेस की बात हम करते हैं, बस हैविंग फिजिकली मेजरेबल डायमेंशन, जिसको हम फिजिकली माप सकते हैं, इसकी लेंथ है, विड्थ है. You know that most data that are used today have spatial components location, such as in the address of a municipal facilities or the boundaries of an agricultural holdings, etc. Hence, the spatial information technology relates to the use of the technological inputs in the collecting. यहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिलेट टू द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग करते हैं उसको. हम किसी डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसमें से कुछ रिट्राइव कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं. डिस्प्लेइंग द मैनिपुलेटिंग, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं. मैनेजिंग एंड एनालिसिस द स्पेशियल इंफॉर्मेशन. इट इज इन द अमोगनेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग, इसमें सारे आते हैं रिमोट सेंसिंग, GPS, GIS, डिजिटल cartography and database management. This is the spatial information technology. What is a GIS, geographical system? The advanced computing system available since mid-1970s enable the processing of the georeferenced information for the purpose of organizing spatial and attribute data and their integration, locating specific information in individuals' files and execute the computations, performing analysis and evolving a decision support system. A system capable of all such function is called the geographical information system. It is defined as a system for the capturing, in which a system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and the displaying data, which are spatially referenced to the earth. This is normally considered to involve a spatially referenced computer database and appropriate application software. इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कैप्चरिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं,
इंटीग्रेट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेशन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, विच आर स्पेशली रेफरेंस टू द अर्थ, जो किसी भी अर्थ का एक पार्ट हो सकता है, पूरी अर्थ का हो सकता है. दिस इज नॉर्मली कंसिडर्ड ए इन्वॉल्व ए स्पेशली रेफरेंस्ड कंप्यूटर डेटाबेस एंड एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द, और उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा उसको एप्लीकेशन, एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन. It is an amalgamation of the computer-assisted cartography and database management system and draws the conceptual and methodological strength from both spatial and the allied sciences such as the computer science, statistics, cartography, remote sensing, database technologies, geography, geology, hydrology, agriculture, resource management, environment science and the public administrations. ये सभी हम कर सकते हैं. इसमें जो है कोई भी ये सब्जेक्ट है किसी भी तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर्म ए फॉर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने बताया कि चैप्टर 4 में टू टाइप्स ऑफ द डाटा रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें यूज ऑफ द कंप्यूटर इन जियोग्राफी, डाटा के किस प्रकार से यूज़ करते हैं. देयर आर स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा. दो प्रकार डाटा होता है, एक स्पेशल होता है उस स्थान के बारे में देखते हैं. नॉन स्पेशियल, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो वो स्कूल कहाँ पर लोकेशन है, उसकी एक्सटेंशन कितना है, वो तो होता स्पेशल डाटा. एक होता है नॉन, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर, इस प्रकार के उसको बोलते हैं नॉन स्पेशल डाटा. द स्पेशल डाटा आर द करेक्टाइज बाय द देयर पोजिशनल लीनियर एंड द एरियल फॉर्म ऑफ द अपीयरेंसेस. स्पेशल में क्या होता है कि उसका कोई कोई विशेषता होती है, उसकी कोई पोजिशन होती है, उसका कोई लीनियर, भाई वो कितनी उसकी लेंथ है, उसका एरिया. यहाँ पर दो प्रकार के डाटा दिए. फर्स्ट डेटा आप देखते हैं इस बॉक्स में, ये आपका पार्ट नंबर दिया गया है. स्टॉक रजिस्टर ऑफ साइकिल शॉप, एक साइकिल शॉप है, उसका एक स्टॉक रजिस्टर है, इसकी पार्ट नंबर, ये क्वांटिटी इसकी ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, व्हील स्पोक है, बॉल बेरिंग है, व्हील रिम है, टायर, ये सारा का सारा हम उसकी बात करें नॉन स्पेशल डाटा है. एक यहाँ पर जो दिया गया लिटरेट पॉपुलेशन इन द स्टेट्स, इसमें से बात करते हैं भी केरला है, इसकी मेल कितने, फीमेल कितने, कितने परसेंटेज है, महाराष्ट्र है, ये सारा का सारा जो है वो स्पेशल डाटा है. Geographic database, a database contains the attributes and their value or class. The non-spatial data on the left display cycle parts which can be located anywhere. The data record on the right is the spatial because one of the attributes, the name of the different states which have a definite location in a map. This data can be used as, इसी बात करते हैं भी इसको आपने दिखाना भी केरला को दिखाना है पूरा पूरे से, तो इसमें इस प्रकार से या कोई किसी प्लेस को दिखाना मान लीजिए पार्टिकुलर, तो एक पॉइंट के द्वारा कर सकते हैं, एक लाइन के द्वारा कर सकते हैं. इस प्रकार से भी कोई रिवर दिखा दी, रिवर दिखा दिया आपने, ये बेंच मार्क दिखा दिया आपने, वो कोई एरिया से लेकर आ रहे, तो इस प्रकार से आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं. द पॉइंट, लाइन एंड एरिया फीचर्स, इसके इन सिंबल के द्वारा हम जो मैप में दिखा सकते हैं. दिस डाटा फॉर्म्स मस्ट बी ज्योमेट्रिकली, कोई भी डाटा इस प्रकार का उसमें ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं, जैसे लेंथ कितनी है, वेथ कितनी है. रजिस्टर्ड टू ए जनरली एक्सेप्टेड एंड प्रॉपरली डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोडेड सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड इन द इंटरनल डाटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द GIS. ऑन द अदर हैंड डाटा दोज डिस्क्राइब द स्पेशल डाटा, जो स्पेशल डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर नोन एज द नॉन स्पेशल डाटा और एट्रीब्यूट डाटाबेस. Spatial data are the most important, are the prerequisite the spatial or geographical information systems. In the GIS core, it could be built in the several ways. इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कुछ acquire the data in digital form. कोई भी डाटा उसको डिजिटल फॉर्म में एक्वायर करेंगे फ्रॉम ए डाटा सप्लायर, डाटा सप्लायर्स. डिजिटाइज करेंगे, उसके बाद उसको डिजिटाइज एग्जिस्टिंग एनालॉग डाटा उसको डिजिटाइज करेंगे. फिर कैरी आउट वंस ऑन सर्वे ऑफ द जोग्राफिक एंटिटीज़, उसमें से फिर जोग्राफिक करते हैं कौन कौन सी जोग्राफिक एंटिटीज़ हैं उसके अंदर. The choice of a source of geographical data for a GIS application is however largely governed by the application area itself. उसके अंदर जो application area है तो अपने आप भी कहाँ पर application होता है. अवेलेबल बजट, हमारे पास बजट कितना है, एंड द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, किस प्रकार का डाटा है, वेक्टर है या रास्टर, ये दो चीज़ें होती है इसके अंदर, वेक्टर और रास्टर डाटा होता है. आगे बढ़ेंगे. For many users, the most common source of the spatial data is the topographical. अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द स्पेशल डाटा टोपोग्राफिकल होता है, और उसमें थीमेटिक मैप्स इन द हार्ड कॉपी पेपर और सॉफ्ट कॉपी फॉर द डिजिटल, जो
डिजिटल होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसको डिजिटाइज कर देते हैं। ऑल सच मैप्स आर डिस्क्राइब बाय द, कोई भी मैप है तो उसके अंदर एक डेफिनेट स्केल विच प्रोवाइड द रिलेशनशिप, ए डेफिनेट स्केल विच प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड द सरफेस इट रिप्रेजेंट। कोई भी उसको करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेट स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल के बारे में जानते हैं। यूज ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स, बहुत से सिम्बल्स और कलर यूज किए जाते हैं विच डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज़, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स एंटिटीज़ हैं उसमें मैप किया जाती है यहाँ पर ये चीज़ है। एंड एन एग्रीड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है उसके अंदर, उसके आपस में उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एन एग्रीड कोऑर्डिनेट सिस्टम विच डिफाइन द लोकेशन ऑफ एंटिटीज़ ऑन द अर्थ सरफेस, उनका आपस में यहाँ पर ये चीज़ है तो ये होगी, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। हम बात करते हैं भी इसकी एडवांटेजेस क्या गया। द मैप्स रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राफिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन of geographic information and possessing the geometric fidelity, उसके अंदर एक ज्योमेट्रिक फिdelity होती है तो उसकी लेंथ कितनी है इस प्रकार से, आर इनहेरिटेड विद द फॉलोइंग लिमिटेशंस, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशंस भी होती है। मैप इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए पार्टिकुलर वे, मैप इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है इन ए पार्टिकुलर वे, एक विशेष ढंग से। The map shows a single or more than one predetermined themes, कोई भी मैप है शो करते हैं उसको एक सिंगल या उससे ज़्यादा जो प्रीडिटरमाइंड थीम होती है उसके अंदर इसको बनाते हैं, इसका मेन जो है वो थीम क्या होगा। कोई भी मैप बनाते हैं तो उसके ऊपर जो चीज़ दिखाई जाती है उसका एक या एक से अधिक जो है कि पहले से निर्धारित होता है भाई इसके अंदर ये थीम जो है इसका उद्देश्य ये है। द अल्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज depicted on the maps require a new map to draw, उसमें से कोई भी चीज़ अल्टर कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, और कोई नई चीज़ से नया मैप बना सकता है कोई भी। The alteration of information depicted on the maps require a new map to be drawn. Contrarily, a GIS possesses the inherent advantage of the separate data storage and presentation. It also provides the options for the viewing and presenting the data in several ways. The following advantages of the GIS are the workmanship. इसकी कुछ एडवांटेज दी गई। यूजर्स कैन इंटरोगेट, कोई भी उसको इंटरोगेट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, स्पेशल फीचर्स एंड रिट्राइव कर सकता है, कुछ जो जानकारी मान लें कई बार उसमें चेंज होगा तो उसको रिट्राइव कर सकता है विद द एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक्स, कोई भी डाटा इसमें से, यानी उसमें उसको इंटरोगेट कर सकता है, ये इंटरव्यूट कर सकता है, डिस्प्ले स्पेशल फीचर्स एंड रिट्राइव द एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक्स। मैप्स कैन बी ड्रॉन बाय द क्वेरिंग, क्या क्या क्वेरी करते हैं तो इसमें जानकारी लेंगे एंड उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे एट्रीब्यूट डाटा को। स्पेशल ऑपरेशंस पॉलीगन, उसके एक पॉलीगन ओवरले कर सकते हैं, बफरिंग होता है उसमें बहुत चीज़ें आती हैं कई बार मैप में। Polygon overlay or buffer can be applied on the integrated database to generate the new sets of information, उनको आपस में ओवरलेइंग करके और कोई नई जानकारी जो है नया डेटाबेस में बना सकते हैं। Different items of attribute data can be associated with the one another through shared the location code. Different item of उसके जो आइटम होते हैं attribute data can be उनको आपस में हम एसोसिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके उसकी लोकेशन कोड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको डिफरेंट आइटम ऑफ एट्रीब्यूट डाटा कैन बी एसोसिएटेड विद द वन अनदर थ्रू द शेयर्ड लोकेशन कोड। तो यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग। हार्डवेयर होता है इसके अंदर सबसे पहले हार्डवेयर होती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है, देन डाटा होता है और उसके बाद पीपल होते हैं एंड प्रोसीजर्स इसके क्या तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जीआईएस आर शोन, आगे फिगर दिया इसमें दिखाया इसकी। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर। एज डिस्कस इन द चैप्टर, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में 4 में, GIS as the 3 major components. Hardware comprising the hardware क्या करता है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, मॉड्यूल्स फॉर द डाटा एंट्री, एडिटिंग, मेंटेनेंस, एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको किसी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट। डेटाबेस management system to take care of the data organizations. Database management system to take care of the data organizations.
Software. An application software with the following functional modules is important requisite of a GIS. Software related to the data entry. Software related to the data entry, editing and the maintenance करता है. Software related to the analysis करता है, transformation, manipulations. Software related to data display and output. Next up, data. Spatial data and related tabular data are the backbone of GIS. The existing data may be acquired from a supplier or new data may be created, collected in the house by the users. The digital map forms the basic data input for GIS. Tabular data related to the map objects can also be attached to the digital data. The GIS will integrate the spatial data with other data. उसके साथ हम जो GIS है उस डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद अदर डाटा रिसोर्सेज एंड कैन इवन यूज ए DBMS सिस्टम होता है. बात करते हैं लोग इसको कैसे यूज करते हैं. GIS यूजर्स हैव ए वाइड रेंज फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स and the monitoring and the implementing agencies. These cross-section of the people use GIS to evolve a decision support system and solve the real-time problem. जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं. चाहे वो एनवायरमेंट साइंस है, जो जानकारी होती है हमारे पास इसके द्वारा, तो उसमें पॉलिसी मेकर भी यूज़ करते हैं. उसके द्वारा किसी एरियाज की मॉनिटरिंग किया जाता है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी यूज़ करते हैं. दीज आपस में क्रॉस-सेक्शन ऑफ पीपल्स उसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मानते हैं और इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करते हैं. रियल टाइम प्रॉब्लम भी क्या जैसे दिखाया गया लोग इस प्रकार से यूज करते हैं. उसके बाद इसका प्रोसीजर्स क्या होता है. द प्रोसीजर्स इंक्लूड द हाउ द डाटा विल बी रिट्राइव्ड. कोई भी डाटा उसको किस प्रकार से रिट्राइव कर सकते हैं. अगर कोई इसमें जानकारी ठीक नहीं है या गलती होती है या इसमें चेंज हो गया तो उसको रिट्राइव कर सकते हैं. इनपुट इनटू द सिस्टम स्टोर्स, मैनेज्ड, ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस एंड फाइनली प्रेजेंटेड इन द फाइनल आउटपुट. ये सारी चीज़ें करने के बाद उस डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फाइनली इन द फाइनल आउटपुट. तो इस प्रकार से इसका हम प्रोसीजर है यूज़ कर सकते हैं. अब तो बात करते हैं स्पेशल डाटा फॉर्मेट्स इसका किस प्रकार से होता है. फॉर्मेट स्पेशल डाटा रिप्रेजेंटेड इन द रास्टर एंड द वेक्टर डाटा फॉर्मेट. दो प्रकार का इंपॉर्टेंट है, रास्टर डाटा और वेक्टर. रास्टर डाटा फॉर्मेट प्रेजेंट ए ग्राफिक. इसमें ग्राफिक फीचर होता है एज ए पैटर्न. जैसे इसमें प्रकार से ग्रिड दिखाए गए, ग्रिड सिस्टम होता है. देखिएगा इसमें दिखाएगा रोज दी गई, इसका कॉलम दिए गए, साइड में रोज एक साइड में कॉलम दिए एज ए सेट ऑफ द लाइन ड्राइंग द बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट्स. कंसिडर ए लाइन ड्रॉन डायगनली on a piece of the paper. A raster file would represent this image by the subdividing the paper into the matrix of the sub rectangle. इसमें मैट्रिक्स प्रणाली आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स प्रणाली होती है. और स्मॉल रेक्टेंगल्स सिमिलर टू ए सीट ऑफ द ग्राफ पेपर्स कॉल्ड द सेल्स. इसकी जो इसको बोलते हैं, देखिए ये इसका पूरा ग्रिड हो गया और इस प्रकार से इसका एक सेल हो गया. ये जो स्क्वायर की बात करते हैं इसका एक ग्रिड सेल हो गया. Each cell is assigned a position of in the data. कोई भी सेल उसकी एक पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है. Each cell is assigned a position in the data file and given a value based on the attribute at that position. Its row and column coordinate may identify. इसी करते थे कहाँ पर है इसकी कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट कहाँ पर भी कोऑर्डिनेट कर रहा है. जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पर कर रहा है, इधर से यहाँ पर कर रहा है, कौन सी कॉलम में और कौन सी रो में है. Coordinates may identify an individual pixel. इस दिखाएगा इसके अंदर. This data representation allows the user to easily construct or visualize the original image. इसमें इस प्रकार से इसके ओरिजिनल देख सकते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. Easily reconstruct or visualize the original image. The relationship between the cell size and the number of the cells is expressed as the resolution of the raster. The effect of the grid size on data in raster format is explained. इसमें दिखाएगा इस प्रकार से ये कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ द ग्रिड साइज, ये देखिए इसमें दिखाएगा ये इस प्रकार से इसके अंदर कितने इसके अंदर कितने सेल में आई ये पोजीशन. इसमें देखिए 50 जो दिखाएगा इसके अंदर पिक्सल ग्रिड 20x16 ये 330 20 पिक्सल हो गया. इसमें 25 पिक्सल दिखाएगा ग्रिड. इसमें देखिए जाने से
इसकी ग्रिड जो है वो छोटे हैं, इस प्रकार से अलग अलग टाइप कुछ इसका, इसमें देखिए शेप इसकी अलग है, ये अलग होती है। तो इसमें पिक्सल जो हो गया आपका 1440। तो इफेक्ट ऑफ द ग्रिड साइज ऑन डेटा, इसमें आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। द रास्टर फाइल फॉर्मेट आर मोस्ट ऑफन यूज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स यूज हो जाता है इसका, सेटेलाइट की इमेज करने के लिए स्कैंड पेपर मैप्स, इस प्रकार से यूज होता है। व्हेन कॉस्ट नीड टू बी केप्ट डाउन, यहाँ पर कॉस्ट जो है उसकी आवश्यकता इसमें कम किया जाए, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इन द मैप डज नॉट रिक्वायर, when the map does not require analysis of the individual map features, जहाँ पर मैप की आवश्यकता नहीं है। In the backdrop maps are required, जहाँ पर backdrop, in the backdrop maps are required, जहाँ पर backdrop map required है। तब का नेक्स्ट तब का वेक्टर डेटा फॉर्मेट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डायगोनल लाइन would record the position of the line, इसको हम लाइन by simply recording the coordinates of the starting and ending points, इसका जैसे वहाँ से खत्म होता है, इस प्रकार से एक लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं। A vector representation of the same diagonal line would record the position of the line by simply recording the coordinates of the starting and ending points. Each point would be expressed as the 2 or 3 numbers depending on the whether the representation was 2D or 3D. When the referred to as the x, y or x, y, z coordinates, इसमें फिगर दिया गया, इसमें देख सकते हैं अभी। The first number x is the distance between the point and the left side of the paper, y the distance between the point and the bottom of the paper, z the point elevations above the or below the paper. Joining the measured points forms the vector. इस प्रकार से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, दिखाएगा इसमें, देखिए ये एक्स वाई दिखाएगा, इसमें इस तरह से पॉइंट को दिखाएगा, लाइन के द्वारा इसकी लाइन बन जाती है, इसकी कोई शेप भी बन जाती है, इस प्रकार से कह सकते हैं आप, इसके अंदर शेप बन जाती है। वेक्टर डेटा मॉडल्स यूज द पॉइंट स्टोर्स बाय द रियल अर्थ कोऑर्डिनेट्स, हियर द लाइंस एंड एरियाज आर बिल्ड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स इन ऑर्डर। लाइन्स हैव ए डायरेक्शन टू द ऑर्डरिंग ऑफ द पॉइंट्स, लाइन को डायरेक्शन जाती है। पॉलीगन कैन बी बिल्ड, इस प्रकार से एक पॉलीगन भी बन सकता है, पॉलीगन कैन बी बिल्ड from points or lines. Vectors can store the information about the topology के बारे में कर सकता है। Manual digitizing is the best way of the vector data inputs. Vector files are the most often used, कहाँ पर इसका यूज होता है? Highly precise application, जहाँ पर एक highly precise application वहाँ पर इसको कर सकते हैं। When the file size are important, when the file sizes are important, when the individual map features require the analysis, जहाँ पर कोई इसमें उसको एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। When डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस द रास्टर एंड वेक्टर फॉर्म पर, इसमें आगे एक बॉक्स दिया गया, उसमें दोनों की विशेषता बताएगी, दोनों का कहाँ इसकी है। रास्टर जो होता है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप। ईजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग, ईजी होता है, एफिशिएंसी उसकी होती है। कंपेटेबल विद द सेटेलाइट इमेजेस, ये सेटेलाइट इमेजेस को आसानी से कंपेटेबल कर सकता है। हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी, इसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो, इज एफिशिएंटली, इसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कई बार कोई स्पेशल डेटा उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो, हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। सिंपल और ऑन प्रोग्रामिंग, सिंपल फॉर द ऑन प्रोग्राम, कोई अपने सिंपल अपने प्रोग्राम्स के लिए। सम ग्रिड सेल्स फॉर द सेवरल एट्रीब्यूट्स, इसमें कुछ ग्रेड होते हैं जो सेवरल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वेक्टर में क्या होता है? कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। एफिशिएंट फॉर द नेटवर्क एनालिसिस, कोई भी नेटवर्क एनालिसिस करना हो। एफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, एफिशिएंट होता है कोई भी प्रोजेक्ट उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना। एक्यूरेट मैप आउटपुट, इसके अंदर जो मैप हो उसका एक्यूरेट। अब दोनों के इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस दी गई। इनएफिशिएंट यूज, अगर हम बात करते हैं रास्टर की, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज को करने में ये इनएफिशिएंट है। एरर इन द पेरीमीटर एंड शेप, इसको हम पेरीमीटर और शेप में जो उसमें एरर आ जाती है। डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस, इनएफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन द यूजिंग द लार्ज सेल्स, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग द लार्ज सेल्स, लेस एक्यूरेट ऑल्दो इंटरेक्टिव मैप्स। इस प्रकार से इसकी ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
डिफिकल्ट ओवरले ऑपरेशंस, डिफिकल्ट ओवरले ऑपरेशंस को डिफिकल्ट, जब ओवरले हो जाता है ऑपरेशन उसको डिफिकल्ट। हाई स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज इनएफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, नो कंपेटेबल विद द सेटेलाइट मेजरिंग। इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ से एडवांटेज इसके हैं, कुछ इसके हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज, दोनों को मिला करके हम पूर्ण कर सकते हैं इसको, तो इसलिए दोनों का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसमें ये कुछ दिखाएगा, इसके अंदर ये फिगर दिखाई राष्ट्र एंटिटीज़, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, इस प्रकार से देखिए राष्ट्र इस प्रकार से ये होता है, इसके अंदर बॉक्स होते हैं, पॉइंट्स दिखाएगा रियल वर्ल्ड एंटिटीज, इसमें इस प्रकार से दिखाते हैं। इसका नेक्स्ट दिखाएगा लाइन्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन इस प्रकार कर सकते हैं, और ये एरियाज़ को इसमें स्पेसिफाई किया जाता है, एरिया फॉरेस्ट इस प्रकार से, नेटवर्क के रोड्स ऐसे दिखाएगा इसके अंदर, इसमें इस प्रकार से। एंड इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल एंटिटीज इन रास्टर एंड वेक्टर डेटा फॉर्मेट्स। हम बात करते हैं स्किल्स ऑफ द जीआईएस एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या क्या होता है, द फॉलोइंग स्किल्स ऑफ द एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द जीआईएस रिलेटेड वर्क: स्पेशल डेटा इनपुट, एंट्रिंग ऑफ द एट्रीब्यूट डेटा, डेटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग, स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा लिंकेज, स्पेशल एनालिसिस। इसकी 5 जो है एक्टिविटीज। As already mentioned, the spatial database into a GIS can be created from a variety of sources. These could be summarized into the following 2 categories. Acquiring the digital data sets from a data splice. The present day data splice make the digital data readily available, which range from the small scale maps to the large scale plans. For many local governments and private organizations, such data form an essential source and keep such groups of the users free from the overhead of the digitizing or collecting their own data. Although using the such existing data set is attractive and time-saving, serious attention must be paid to data compatibilities when the data from different sources splice are combined or in one project. The difference in terms of the projection scale, base level and description in attributes may cause the problem. इस प्रकार से कोई भी इसको यूज कर सकता है, उसमें टाइम बढ़ जाता है। At a practical level, users must consider the following characteristics of the data to ensure that they are compatible with the applications. Scale of the data. डेटा का स्केल कितना उसके है। द जियो रेफरेंसिंग सिस्टम यूज्ड, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, जो डेटा किस प्रकार की टेक्निक्स की है, एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज्ड। क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड, डेटा की उसकी क्वालिटी क्या है। द डेटा क्लासिफिकेशन एंड इंटरपोलेशन मेथड यूज्ड, जो डाटा उसके बाद उसको इंटरपोलेशन करते हैं आपस में, होता है। साइज एंड शेप ऑफ द इंडिविजुअल मैपिंग यूनिट्स, द लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड, the length of report kitna hai. It must also be noted that where the data are used from a number of the sources and particularly where the area of the study crosses administrative boundaries, बात उसमें ये क्रॉस कर जाती है। The difficulties in data integration are caused by the different geographical referencing system, data classification essentially. Hence the user needs to be aware of these problems, which are particularly found when the compiling इंटर-प्रोविंस। कई बार एक दूसरे आपस में जो है वो मिल जाते हैं, इंटर-प्रोविंस होता है, एक प्रांत की दूसरे प्रांत, एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट डाटा सेट्स। Once the compatibilities between the data acquired from different suppliers is stabilized, the next stage involves the transfer of the data from a medium of transfer to the GIS. The use of the data tapes, CD बात करते हैं, ROMs की बात करते हैं, and floppy disks is becoming the increasingly common for the purpose. At this stage, the conversion from encoding and the structuring system, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। The sources to that of the GIS to be used in is important. Creating the digital data sets by the manual input. Next, the manual inputs of data to GIS involves for the main stages entering the spatial data, entering the attribute data, spatial and attribute data verification and editing. उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद एडिटिंग किया जाता है। Where necessary, linking the spatial to the attribute.
जहाँ पर ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, तो वहाँ पर उन दोनों को आपस में लिंकिंग कर देते हैं। तो ये था आपको इसके बारे में। नेक्स्ट आपको द मैनुअल डाटा input methods depend on whether the database has a vector topology or grid cells raster structure. The most common ways of the inputting the spatial data into a GIS are thoroughly digitization करते हैं, उसको scanning किया जाता है. With the entities model, geographical data are in the form of the points, lines, and the polygons, areas, pixels, which are defined using a series of the coordinates. These are obtained by the referring to the geographical referencing system of the map or aerial photographs, or by the overlaying a reticle or grid into it. The use of the digitizers and the scanners greatly reduce the time and labor involved in writing down coordinates. We shall briefly discuss how the spatial data are created in the GIS core using as a scanner. Scanner किस प्रकार से करते हैं scanners को? Scanners are the devices for the converting analog data into the digital grid based images. They are used in the spatial data capture to convert a line map to high resolution raster images, which may be used directly or further processed to get the vector topologies. There are two basic types of the scanners. Those two. Scanners that record the data on a step-for-step basis, and those that can scan whole document in one operations. First type of the scanner incorporates a source of the illumination or movable arm, usually the light emitting diodes or the stylized fluorescent lamp. इस प्रकार से होता है इसका, and digital camera with the high resolution lamp. The camera is usually equipped with the spatial sensor called the charged coupled devices, CCD बोलते हैं इसको. The arranged in array. These are semiconductor devices that translate the photons of light falling on their surface into the counts of the electrons. इस प्रकार से इसमें चेंज करता है, टेक्निकल है कुछ कंप्यूटर का, एक इस प्रकार से उसको जो काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are then the record as the digital values. तो इसका एक मेथड होता है किस प्रकार से ये काम करता है. The movement of either the scanner or the map builds up a digital two-dimensional images of the map. The map to be scanned can be mounted either on a flat bed or on a rotating drum. With the flat bed scanners, the light source is moved systematically up and down over the surface of the document. For large map scanners are used which are mounted on a stand, and the illumination sources and cameras array are fixed in a position. The map is moved past by the feeding the mechanism. Modern document scanners resembles the laser printers in the reverse because the scanning surface is manufactured with a given resolutions of the light sensitive spots that can be directly addressed by the software. There are no moving parts except a movable light source. The resolution is determined by the geometry of a sensor surface and the amount of memory rather than by a mechanical arm. The scanned image is always far from the perfect even with the best possible scanners, as it contains all the smudges and the defects of the original map. The excess data therefore in a digital image must be removed to make it usable. ठीक है बच्चों, आपका आगे नेक्स्ट उसमें कराएंगे लेक्चर में आपको. ओके, थैंक यू वेरी मच. आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है.